శ్రీవారి కళ్యాణ ఉత్సవం.
ఏకాంతాయ కళ్యాణ నిధయే నిధయేర్థినాం శ్రీవేంకట నివాసాయ శ్రీనివాసాయ తే నమః. హరి ఓం. శ్రీ గోవింద గోవింద గోవింద. అస్య శ్రీ భగవతో మహాపురుషస్య మహావిష్ణోః ఆజ్ఞయా ప్రవర్తమానస్య అద్య బ్రహ్మణః ద్వితీయపరార్థే శ్వేతవరాహకల్పే వైవస్వతమన్వంతరే కలియుగే ప్రథమపాదే జంబూద్వీపే భారతవర్షే భరతఖండే శకాబ్దే మేరోః దక్షిణే పార్శ్వే అస్మిన్ వర్తమానే వ్యావహారిక శ్రీ ఆదివరాహ క్షేత్రే వెంకటాచరే అస్య దేవదేవస్య భగవతో నారాయణస్య శ్రియఃపతేః పురుషోత్తమస్య శ్రీభూమి నీలాసమేతస్య శ్రీ శ్రీనివాసస్వామినః కళ్యాణోత్సవం కర్మాంగం మమ. గృహస్థులు వారి యొక్క గోత్రాన్ని మనసులో స్మరించుకోండి. వారి పేరు, ధర్మపత్ని పేరు, కుటుంబ సభ్యుల పేర్లు, అందరి పేర్లు మనసులో స్మరించుకుంటూ వారి వారి కోరికల్ని, ప్రార్థనని స్వామివారికి విన్నవించుకోవాల్సింది. సహ కుటుంబానాం సహ పరివారాణాం సహ బాంధవానాం క్షేమస్థైర్య ధైర్య వీర్య విజయ అభయ ఆయుః ఆరోగ్య ఐశ్వర్యాణం అభివృద్ధ్యర్థం ఉత్తరోత్తర కైంకర్యాణం అభివృద్ధ్యర్థం శ్రీ శ్రీనివాస స్వామి కరుణ కటాక్ష వీక్షణ పరిపూర్ణ సిద్ధ్యర్థం లోకక్షేమార్థం కళ్యాణోత్సవం
ఆచార్యముఖేన అహం कारयिष्ये సర్వం శ్రీనివాసార్పణమస్తు. ఓం నమో వెంకటేశాయ. గోవింద గోవింద. శ్రీ వెంకటాచలాధీశం శ్రీయాత్యాసిత వక్షసం ஸ்ரிதச்சேதன மந்தாரம் ஸ்ரீனிவாசம் அகம்பஜை என்று அந்த திருமலை அப்பனை செவித்துக்கொண்டு இன்றைய நாள் மிகவும் நன்னாள். அதாவது கருட பஞ்சமி, நாகபஞ்சமி என்றும் செவ்வாய்க்கிழமை உத்திரம் நட்சத்திரத்துடன் கூடிய இந்த நன்னாளிலே பகவானுடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவத்தை நேரடி ஒளிபரப்பில் செவித்துக் கொண்டிருக்கிறோம். இந்த கல்யாண உற்சவத்தின் நேரடி ஒளிபரப்பின் வர்ணனையாளர் திருமதி ஏ அருணா. பகவானே வேங்கடவனே கோவிந்தா கோவிந்தா என்று முதலில் அந்த எம்பெருமான் திருவேங்கடவனையும் அடுத்து நாச்சிமார்களான ஸ்ரீதேவி பூதேவி பிராட்டிமார்களையும் நேரடி ஒளிபரப்பில் செவித்துக் கொண்டிருக்கிறோம். லக்ஷ்மி ரமண கோவிந்தா, தரா ரமண கோவிந்தா 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 என்று சங்கல்ப மந்திரங்களை தொடர்ந்து சேனா முதலி எனப்படும் விஸ்வக்சேனருக்கு ஆராதனை சுத்தி புண்ணிய வாசனத்துடன் திருக்கல்யாண மகோத்சவம் ஆரம்பமாகிறது. இந்த சேனா முதலி என்பவர் எந்த ஒரு காரியத்தை செய்தாலும் தடங்கள் இல்லாமல் நிர்வகித்து கொடுப்பவர். ஆகையால் வைஷ்ணவ சம்பிரதாயப்படி முதலில் இவருக்கு விஸ்வக்சேனருக்கு ஆராதனை செய்த பிறகே மற்ற கைங்கரியங்கள் செய்வார்கள். ஆகவே முதலில் விஸ்வக்சேன ஆராதனை சுத்தி புண்ணியவாஜனத்தை சேவிக்கலாம். அதைத் தொடர்ந்து மற்ற கைங்கரியங்கள் நடைபெற உள்ளன. பிராணாநாம்யாம் ஓம் பூ ஓம் ஓம் ஸ்வஹா ஓம் மஹா ஓம் ஜனஹா ஓம் தபஹா ஓம் சத்யம் ஓம் தத்சுதர்வரேண்யம் भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् देवो मा भोज्योतिरसमृतं ब्रह्म भूर्भुवस्वरम् अस्यां शुभदोषदे देवस्य भवतो नारायणस्य श्रीयःपदेवोत्तमस्य श्रीभूनीलासमेतस्य श्री श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सकर्माङ्गं स्थण्डिलपरिधिपरिसनादि सर्वोपतन्त्रप्रसिद्धत्वं शान्तत्वं सकपुण्यावाचकर्मयिष्यन् आदौ निर्विघ्नेन समाप्यर्थं विश्वक्सेनाराधनं तदङ्गपूर्वे कर्काराधनं करिष्ये. ओं धारासप्तशमांशेषु सरत्सरस्वरिभूर्देषु अपोभिगृह्णन् प्रतिपादिष्ये घृणां नृत्तां तरगं शर्मा इदमापस्वा शुतमा शान्ता शान्तमा शुभा शुतमा पूता पूतमा पुण्याः पुण्यतमा मेध्या मेध्यतमां तां दृशाः पूता ब्रह्म पवित्रेण भूता सूर्यसरस्वती आपो वायुं सर्वं विश्वा भूतान्यापः प्राणावापः पशवापो नमापो मदापः सम्राडापो विराडापः छन्दा विश्वापो ज्योतिविश्वापो यजुविश्वापः सत्यमापः सर्वा देवतापो भूर्भस्वरापोम् अस्मिन् कुम्भेऽङ्गाशीर्थनावाहयामि एतेषु वृणे सहस्रज्ञाः पाशाविदाः पुरुत्रा तेभ्योऽन्द्रस्ततोविष्णुऋष्यो देवां चन्द्रमतस्वस्य वर्णमावाहयामि प्रदेशमावाहयामि रक्ताम्बरधर्मावाहयामि यादस्मृतिमावाहयामि वर्णाय नमः वर्णस्य इदमासनं वर्णाय नमः इदं पाद्यं समर्पयामि इदमर्घ्यं समर्पयामि इदमाच्यं समर्पयामि एते प्रतस्त्रोत्र्याभरणोपवीत पुष्पगन्ध धूपदीपालङ्कारार्थाः इमेक्षता सर्वापचाराः सर्वतीर्थेलं पुण्यं पावनं सर्वकारणं विष्णुपादोद्भवं शुद्धं सर्वमङ्गलदायिना करिष्यमानुषकर्मणा निर्विघ्नेन समाप्युक्तं विश्वक्सेनाराधनं करिष्ये. विश्वक्सेनं च दुर्बाहुं शङ्खचक्रसंयुतं व्याप्तिं सङ्केतं सुस्पर्धवाहनं पूर्वाषाढोद्भवं देवं दक्षिणां खमुच्चेत् आग्नेयोऽस्माद्यदामे त्वाश्रे दातं एतोत्सम्भो वैराजन्ते सुतन्निधत्तां प्रेक्षां दिशोऽभिधानामनादिः यामे स्थान् दिन्दान् धातुं भू पद्माकारमण्डले विश्वक्सेनमावाहयामि शान्तमावाहयामि हरमावाहयामि अमितमावाहयामि तत्पत्नीं सूत्रवतीमावाहयामि वामेज्यामावाहयामि तत्पत्नीस्य विश्वक्सेनस्य इदमासनं विश्वक्सेनाय नमः इदं पाद्यं समर्पयामि इदमर्घ्यं समर्पयामि इदमाच्यं समर्पयामि सर्वोपचारार्थम् अक्षतान् समर्पयामि. विश्वक्सेन स्मृता राजा भगवान् सर्वगुणा तस्मान्यनुभासेता कर्मणान् विघ्नशान्तिः आरम्भे कर्मणान् पुष्टे विज्ञानान् परिसमाप्य कुर्यात् सुवर्भारस्य विश्वक्सेनस्य भोजनं भगवद्भिरज्ञातः पुण्यः पुण्यहं वाचयिष्ये. ओं वाचतां सुपुण्याहं करोमि कुरुष्वास्तप्रोक्षतमस्तु प्रजापतिप्रियतां प्रेतां भगवान् प्रजापतिः शाम्यन्तघोराणि शाम्यन्तपापान् शाम्यन्त्वायितेः शुभानि वर्धन्तां वर्धन्तां शुभानि शाम्यन्तघोराणि शाम्यन्तपापान् शाम्यन्त्वायितेः शुभानि वर्धन्तां वर्धन्तां शुभानि शाम्यन्तघोराणि शाम्यन्तपापान् शाम्यन्त्वायितेः शुभानि वर्धन्तां वर्धन्तां शुभानि.
ओं मतो देवाः वन्दनतो विष्णुचक्रमे पृथिव्यास्तप्रधामभिः इदं विष्णुचक्रमे त्रेधानि देवतं समूढमस्वागुं सुरे त्रीणि पदाविचक्रमे विष्णुर्गोपादाभ्यः ततो धर्माणि धारयन्ने विष्णोः कर्माणि पश्येतोः वृतानि पश्यसि इन्द्रस्य जसखाः तद्विष्णोः परमं पदकं सदा पश्यन्ति सूर्यः दिवि वचक्षुरा तदं तद्विप्रासो वन्यवो ध्रुवागं दत्सविन्दते विष्णोर्जत्परमं पदं द्रविणोदा द्रविणशस्त्रस्य द्रविणोदा शरीरस्य प्लेगं सदे द्रविणोदा वीरविदेशन्नो द्रविणोधाराः अस्ति दीर्घमायुः यत्पुण्यं नक्षत्रं तद्वत्कर्वेदा भविष्यं यदा वै सूर्यपदेति यत् नक्षत्रं नैति यावत् तत्सूर्यो गच्छेति तद्धन्यं पश्येति तावत् गुरुविदत्कारी स्यात् पुण्याः एव गुरुते ओं भूः अतिपुरोक्तनिष्ठायामस्यां श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सवमाङ्गं तण्डिलपरिधिपरिस्नास्रोत्तन्त्रविषत्वं शान्तत्वं सपुण्यावाचक्रमणि पुण्यां भ्रन्तोः भ्रन्तु पुण्यां कर्मणोऽस्तु करुणा पुण्यां भ्रन्तोः भ्रन्तु पुण्यां कर्मणोऽस्तु करुणा पुण्यां भ्रन्तोः भ्रन्तु पुण्यां कर्मणोऽस्तु स्वस्तिनेन्द्रार्धस्वास्त्रः पूषा श्वेदाः स्वस्तिनस्तारिष्वारिष्टेमि स्वस्तिनां बृहस्पतिः ददातु ओं भूः अतिपुरोक्तनिष्ठायामस्यां श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सवमाङ्गं तण्डिलपरिधिपरिस्नास्रोत्तन्त्रविषत्वं शान्तत्वं सपुण्यावाचक्रमणि स्वस्तिं भ्रन्तोः भ्रन्तु कर्मणे स्वस्ति करुणा स्वस्तिं भ्रन्तोः भ्रन्तु कर्मणे स्वस्ति करुणा स्वस्तिं भ्रन्तोः भ्रन्तु कर्मणे स्वस्ति हृद्यास्मव्येन संसद्या मित्रं देवं मित्रधेयन्नोऽस्तु अनुराधान् हविषा वृद्धयन्तः शतञ्जीवं सदस्वीराः अतिपुरोक्तनिष्ठायामस्यां श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सवमाङ्गं तण्डिलपरिधिपरिस्नास्रोत्तन्त्रविषत्वं शान्तत्वं सपुण्यावाचक्रमणि वृद्धिं भ्रन्तोः भ्रन्तु कर्मरुद्धतां करुणरुद्धिं भ्रन्तोः भ्रन्तु कर्मरुद्धतां करुणरुद्धिं भ्रन्तोः भ्रन्तु कर्मरुद्धतां वृद्धिः समृद्धिः पुण्या समृद्धिः आपोहिष्टामय भोस्तान ऊर्जेदादना मेहरणा चक्षुषे योपस्वतमोरतस्तस्य भार्यतेन उषतीरिव मातरः तस्मारङ्गमापोयस्यक्षयाय जन्मधः आपो जनेधा जनः हिरण्यवर्णाश्च पावकायाः जातः कस्य भोजाः सुन्दरः अग्निया गर्भं दद्रे विरूपास्तान् आपस्यग्स्ताना भवन्तु यासागं राजा वृणोयात् मध्ये सत्यानृतयोपसञ्जनानां मधस्य च सुजयाः पावकास्तान् आपस्यग्स्ताना भवन्तु यासान् देवादिगृह्णन्ति वक्षय्यान्तरिक्षे बोधा भवन्ति याः प्रतिबिम्बे सवन्दन्ति शुक्रास्तान् आपस्यग्स्ताना भवन्तु पवमानस्वर्जनः पवित्रेण विजर्षिणिः यः पोतासमनात्मा पुनन्तु महादेवजनाः पुनन्तु मनवोधिया पुनन्तु विश्वायवः जातवेदः पवित्रमति पवित्रेण पुनाहिमा शुक्रेण देवदिद्यते अग्ने कृत्वा कृतगुम्रणु येन देवाः पवित्रेण आत्मानं पुनते सदाः तेन सहस्रधारेण पवमान्यः पुनन्तु मां राजापत्यं पवित्रं तदोद्यामुगं हिरण्मयं येन ब्रह्मविदाभयं पूतं ब्रह्म पुनीमहे इन्द्रस्वनिति सहमाप्नातु सोमस्वस्त्यावृणस्वमीच्याः यमो राजाः प्रम्नाभिः पुनात्मा जातवेदामोर्जयन्त्वा पुनातु तच्छयोरावृणीमहे गातं यज्ञाय गातं यज्ञमते दैवीः स्वस्तिरस्तनः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जगातु भेषजं षण्णो अस्तद्विपदेः षण्चतुष्पदे ओं शान्तिः 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 प्राच्याहान्ति देवार्तिरामार्जयन्तां दक्षिणाजान् दिश्मासाः पितरामार्जयन्तां प्रदीच्याहान्ति शिखरः पशुवामार्जयन्तां उदीहीच्यान् दिशा भोढयो वनस्पतिमार्जयन्ताम् ऊर्ध्वाजाहां विदेग्नसंवत्सरो यज्ञमधर्मार्जयन्तामुदोदराधरे नागेभ्योमार्जयन्ताम् वास्तवः स्वदेव्यानि यस्मान् स्वाभिशानमेव भवानः यच्चे महे प्रजन्नो शस्यने तद्वदेशञ्चतुष्पदे वास्तवः स्वदे शक्मया संसदाते सक्षिमयि शरण्या गाधमत्याः आवक्ष्यमुदयोगेरण्णो यूयं पातस्तस्थविस्वदानः अमीवः वास्तवः स्वदे विश्वारोपान्याभिषन्ने दशा सेवेदनः अनोरणीयान् मातो महीयानात्मा गुहायान् विदोष्यन्तः तमः कलम्बस्वदेवी दशोगो दातस्वदादान् महिमानमीशुम् सप्त प्राणा प्रवन् सप्ताः सप्ताक्ष समिद सप्तेष्वाः सप्तैमे लोकाय चरन्ति प्राणा गुहास्यां निधा सप्तसप्ता अतः समुद्रागरेत् सर्वेत् शान्तं ते सिन्धवः सर्वरूपाः अतश्च विश्वावोषधयोरसाः श्रुतेनेषु भूततिष्ठत्यन्तरात्मा ब्रह्मादेवानां पदवीः कवीनां ऋषिप्राणां ईशो मृगाणां शेनो गृध्रानागस्वैतर्वणानागस्वमः पवित्रमत्येतिरेपन्ने अजामेकां ललितशुक्लकृष्णां बह्वी प्रजां जनयन्तीं स्वरूपां वरुणान्माय सक्सेनान्मः पुनः पाद्याचं सत्प्यामि वरुणान्माय सक्सेनान्मः यथा भासाः गुडोभारं निवेदयामि
ताम्बूलं समर्पयामि स्वरशिक्षणां समर्पयामि विश्वक्सेनाय महावरुणाय नमः शोभनार्थं क्षेमाय पुनरागमनाय च கோவிந்தா கோவிந்தா. திருமலை அப்பனுடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலே விஸ்வக்சேன் ஆராதனை சுதி புண்ணியா வஜனத்தை சேவித்தோம். அடுத்ததாக அங்குரார்ப்பண கைங்கரியத்திலே நாம் இப்பொழுது சேவிக்க இருக்கிறோம். திருமலையிலே திருமணி என்பது மிகவும் பிரசித்தமானது. ஒவ்வொரு நாளும் இரவு 7:30 மணிக்கு அந்த கண்டாநாதம் என்று சொல்லப்படும் மணியோசையானது அனைத்து ஊர்களுக்கும் மலையிலிருந்து கேட்கும் ஒலி கீழே அந்த ஒலியை நாம் கேட்கலாம். அப்படி திருமலைக்கு மிகவும் பிடித்த, அதாவது திருமலையப்பனுக்கு மிகவும் பிடித்த மாதம் புரட்டாசி மாதம். அந்த எம்பெருமானை நாம் பிடிக்க திருமலையப்பனை நாம் சேவிப்பதும் புரட்டாசி மாதத்தில் தான் அதிகமாக. புரட்டாசி மாதத்தின் சிறப்பே கோவிந்த கோஷம்தான். கோவிந்தா கோவிந்தா என்ற திருநாமத்தை கொண்டு அழைத்தால் போதும், நம் உள்ளத்தின் உள்ளே வந்து நான் தங்கிவிடுவேன் என்பார் அந்த ஆதிசேஷன் தாங்கிக் கொண்டிருக்கும் திருமலையில் வாசம் செய்யும் திருமலை வாசன். அப்படி திருமலை அப்பனின் தயா குணத்தை, கருணை குணத்தை தம் தயா சதகம் என்னும் ஸ்தோத்திரத்தில் வழிகாட்டி கொடுத்த சுவாமி நிகமாந்த தேசிகன் அவர்கள் புரட்டாசி மாதத்தின் அந்த திருவோண நட்சத்திரம் செய்த பாக்கியம் திருமலை அப்பனும் அவன் தன் திவ்ய திருமணியும் ஒரே நட்சத்திரத்தில் ஒரே மாதத்தில் அவதாரம் செய்தது சிறப்பு. அப்படிப்பட்ட அந்த திருமலை அப்பனுடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலே இதோ நவதானியங்களை மண் பாலிகைகளிலே சேர்த்து அதிலே நீர் சேர்த்து அக்ஷதை திருத்துழாய் போன்றவைகளால் அர்ச்சக சுவாமி பூஜை செய்து கொண்டிருக்கிறார். தேவர்களையும் ஆவாகனம் செய்கிறார். தேவர்கள் அந்த எம்பெருமானுடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவத்தை நேரடி ஒளிபரப்பில் சேவித்து அவனுடைய அனுகிரகத்தை பெறுவதற்காக வந்துள்ளார்கள். அதேபோல் நாமும் அந்த பகவானுடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவத்தை நேரடி ஒளிபரப்பில் சேவித்து பகவானுடைய அனுகிரகத்தை பெறலாம். எல்லா திருக்கோயில்களிலும் பெருமாளுக்கு திருவாராதனம் நடைபெறும் பொழுது கைமணி என்பது ஒலிக்கப்படும். ஆனால் இன்று வரை திருமலையில் மட்டுமே அப்படி திருவாராதனை பூஜை நடைபெறும் நேரத்தில் கைமணி என்பது ஒலிக்காது. அங்கே திருமலை அப்பனின் சந்நிதியில் அந்த மணியே கிடையாது. ஏன் மணி இல்லை என்பதற்கு ஒரு அந்த பெரிய மணி ஒன்றுதான் ஒலிக்குமாம். அப்படி காஞ்சிபுரத்திலே பக்கத்திலே தூப்பல் என்ற ஒரு சின்ன அக்ரஹாரம். அந்த அக்ரஹாரத்தில் அனந்தசூரி தோத்தாரம்மா என்ற தம்பதி வாழ்ந்து வந்தனர். திருமாலின் மீது அவர்களுக்கு ஏராளமான பக்தி. அந்த திருமலையப்பனை சங்கல்பம் செய்து கொண்டு வழிபட்டு வந்தார்களாம். ஒரு நாள் அனந்த சூரியன் கனவிலே வேங்கடவன் தோன்றினார். உன் மனைவியோடு திருமலைக்கு வந்து என்னை தரிசனம் செய்து வா பக்தனே, உனக்கு நல்ல சத்புக்தியுடன் கூடிய ஒரு புத்திரத்தை சீக்கிரம் பிறப்பான் என்று கூறினாராம். அப்படி அந்த பெருமாளே வந்து கனவில் சொன்னதும் அவர்கள் ஆனந்தம் மேலிட அவர்களிடம் சென்றாராம், பெருமாளிடம் சென்றார்களாம். இதோ ரக்ஷா பூஜை ஆரம்பமாகியது. இதமாசனம் இதம் பாத்யம் சமர்ப்பயாமி, இதமர்க்யம் சமர்ப்பயாமி, இதமாச்சம் சமர்ப்பயாமி, இதே ப்ளதஸ்திராத்ரியாபரணபூயதஸ்பன்னதோதிபாலங்கரத இமேக்ஷா சர்வோபசாரः. ஹரி ஓம். ஸ்வஸ்தி நோ மேதாம் விஷ்ணுநாபக ஸ்வஸ்தி தேவேதினருணः ஸ்வஸ்தி பூஷாம் சர்வதாதன ஸ்வஸ்தி தியாவாः பிருத்திவி சேதனாः ஸ்வஸ்தேः வாயும் பப்ராமஹே சமம் ஸ்வஸ்தி புவனஸ்ய ஸ்பதிः बृहस्पतिं सर्वगणं स्वस्तेः स्वस्ते आदित्यासो बोन्दनः विश्वेः देवानोः द्या स्वस्तेः वैश्वानरवसरग्निः स्वस्तेः देवावन्द्रभः स्वस्तेः स्वस्तिनः रुद्रः पात्वंसः स्वस्तिमित्रावरुणः स्वस्तिमध्यरेवती स्वस्तिन इन्द्रश्चाग्निश्च स्वस्तिनः देकृति स्वस्तिबन्धा मुनितरेम सूर्या चन्द्रमसामिव पुनः जानता सङ्गमेमहि स्वस्तेनन्तार्क्षवृष्टिनिमिं महद्भोतं वायुसं देवतानाम् असुरघ्नमिन्द्रासकं समत्सु बृहद्यसो नाम वारुहेम अम्हों च माङ्गिरा सञ्जयं च स्वस्याः त्रेयं मनसा दाक्षं प्रेतपाणिशरणं प्रपद्ये सुसंबाधे शुभयन्नोऽस्तु
स्वभागं शुभम् அந்த திருமலையப்பனை செவித்துக்கொண்டு அடுத்ததாக காப்பு கட்டுதல் என்னும் ரக்ஷாபந்தன கைங்கரியத்தை செவிக்கலாம். அப்படி அந்த தம்பதியர்களுக்கு என்னை தரிசனம் செய்து கொண்டால் நீ உனக்கு சத்புத்திரன் பிறப்பான் என்று கூறுவே கனவில் சொன்னதும் ஆனந்தம் அடைந்த அந்த தம்பதியர்கள் இருவரும் கூட பாத யாத்திரையாகவே காஞ்சிபுரத்திலிருந்து திருமலைக்கு சென்றனராம். திருமலையில் திருவேங்கடவனை தங்கள் கண்குளிர மனமும் தரிசித்து கொண்டிருக்கும் பொழுது வேங்கடவனின் திருக்கடாட்சத்தில் தங்கள் பொழுதாக போக்கிக் கொண்டார்களாம். அந்த தம்பதியினர் புரட்டாசி மாதம் சிராவண நட்சத்திரம் கூடிய ஒரு நாள் இரவு தோத்தார் அம்மாவின் கனவிலே அருள் புரிந்தான் திருவேங்கடவன். அந்த அம்மையாருக்கு வந்த கனவு இதுதான். தம்பதி சமேதராக அனந்த சூரியும் தோத்தாரம்மாவும் திருமலையில் பெருமாளை கண்குளிர தரிசனம் செய்து கொண்டிருந்த பொழுதே அங்கே பெருமாளின் சந்நிதியில் இருந்த கைமணி தானாக எழும்பி தோத்தாரம்மாவின் கையில் அமர்வது போல், பின் அந்த மணியை தோத்தாரம்மா விழுங்கி விடுவதைப் போலவும் கனவு வந்ததாம். பெருமாளுக்கு பிரம்மோற்சவ விழாவில் தீர்த்தவாரி சக்கரஸ்நானம் நடைபெற்ற நாள். அதற்கு மறுநாள் காலையில் தான் கண்ட கனவை தன்னுடைய கணவரிடம் கூற, பெருமாளே மணிரூபத்தில் அனுகிரகம் செய்திருக்கிறார் போலும் திருமணியாய் கனவில் தோன்றிய பெருமாளை கண்டு தரிசித்துவிட்டு வருவோம் என்ற அந்த தம்பதியர் திருக்கோயிலுக்கு சென்ற பொழுது எப்பொழுதும் இல்லாமல் அங்கு வெகு பரபரப்பாக இருந்ததாம் கோவில். பெருமாளின் சன்னதியில் இருந்த மணியை காணவில்லை என்று சப்தம் தான் கோவிந்த சப்தத்தோடு அன்று திருமலையில் ஒதித்ததாம். கோவிந்தனின் சன்னதியில் இருக்கும் மணியை காணவில்லையாமே, கோவிந்தா உன் சன்னதியில் இருக்கும் மணியை காணோமா என்று திருமலையில் திரும்பிய பக்கம் எல்லாம் அங்கங்கே பக்தர்கள் பேசிக்கொண்டிருந்தார்களாம். தான் கண்ட கனவிற்கும் இங்கே மணி காணாமல் போனதற்கும் ஏதாவது சம்பந்தம் இருக்குமோ என்னவோ என்று பயந்தபடியே மெல்ல நடந்து கொண்டிருந்த தோத்தார் அம்மை திருப்பதி ஜீயர் சுவாமிகள் பார்த்தாராம். பார்த்தவர் சட்டென்று அந்த தம்பதியர் அருகில் நேற்று என் கனவில் ஸ்ரீனிவாசன் தோன்றினார். தோன்றியவர் உன் வயிற்றில் அவரின் திருமணி செல்வதை நான் பார்த்தேன். இனி ஸ்ரீனிவாசனுக்கு தனியாக அந்த பெருமாளின் திருவாராதனையின் பொழுது மணி தேவையில்லை. காரணம், பெருமாளின் திருமணியே இந்த அம்மாளின் திருவயிற்றில் பிள்ளையாக பிறக்கப் போகிறான் என்று திருவாய் மலர்ந்தளி அருளினாராம் அந்த திருப்பதி ஜீயர் சுவாமி. தன் வயிற்றில் திருமலையப்பனின் திருமணியை 12 மாதங்கள் கர்ப்பவாசத்தில் சுமந்த பேற்றினை பெற்றாள் தோத்தாரம்மா. அதற்கு அடுத்த ஆண்டு பிரம்மாண்ட நாயகனுக்கு பிரம்மாண்டமான பிரம்மோற்சவம். அந்த பிரம்மோற்சவம் நடந்து கொண்டிருக்கு. தீர்த்தவாரி திருநாளான புரட்டாசி மாதம் சிரவணம் திருவோண நட்சத்திரம் கூடிய திருநாமத்தில் சுவாமி நிகமாந்த மகாதேசிகன் திரு அவதாரம் செய்தாராம். தம்முடைய முதல் ஸ்லோகமான ஸ்ரீ ஹயக்ரீவ ஸ்தோத்திரத்தில் ஸ்ரீ வைகுண்ட நாதனான பரவாசு தேவனே ஸ்ரீ ஹயக்ரீவ பெருமாளாக அவதரித்துள்ளார் என்றும், அந்த பெருமாளின் திருமேனியை தியானித்தால் கிழக்கு விடிந்தால் இரவு கழிவது போல மக்களுக்கு அந்த அஞ்ஞானம் அறவே ஒழிந்து போகும் என்ற நல்லெண்ணம் காட்டி திருவேங்கடமுடையானை தயை குணம் கருணை குணத்தை மட்டுமே போற்றி நாம் 108 ஸ்லோகங்களை நம் தயா சதகத்தின் வழி கொடுத்து அருளியவர் சுவாமி தேசிகன். அப்படி தேசிகர் அந்த திருமலை அப்பனுடைய அனுகிரகத்தால் அவதரித்ததால் தயா சதகத்தை எழுதினார் என்றும் அதிலே பெருமாளுடைய பெருமையை கூறினார் என்றும் கூறப்படுகிறது. இதோ திருமலை அப்பனுக்கு ரக்ஷாபந்தன கைங்கரியத்தை முடித்துக்கொண்டு ஸ்ரீதேவி பூதேவி பிராட்டிமார்களுக்கு ரக்ஷாபந்தன கைங்கரியத்தை நடத்தி கொண்டிருக்கிறார் அர்ச்சக சுவாமி. லக்ஷ்மி ரமண கோவிந்தா, தராரமண கோவிந்தா கோவிந்தா என்று பிரபத்தே தம் கிரிம் பராய என்று கருணையே வடிவெடுத்து நிற்கும் திருமலையை முதலில் சரணடையச் சொல்லி பின் தாயாரையும் பெருமாளையும் சரணடைய சொல்லி அருளிச் செய்கிறார். பெருமாளின் அந்த தயை குணம்
கங்கை ஆற்றைப் போல் பெருக்கெடுத்து ஓடிக்கொண்டிருப்பதாக சொல்லும் சுவாமி தேசிகன் திருவேங்கடவனின் திருமார்பிலே வீற்றிருக்கும் தயாதேவியிடம், தயாதேவியே, நீயே அடியனுக்கு தாய், உன் குழந்தை நான், என்னை காப்பது இனி உன் பொறுப்பு என்று அந்த தயா சதகத்தின் 12வது ஸ்லோகத்திலே அருளிச் செய்கிறார். அப்படி நாம் அனைவருமே அந்த தயாதேவியின் குழந்தைகளே. தயாதேவியை தன்னுள்ளே கொண்டிருக்கும் அந்த திருமலையப்பன் நம்மையும் தயை கொண்டு காப்பாற்றியே தீருவான் என்றும், திருமலையையும் திருமலையப்பனையும் திருமலையப்பனின் திருமணியாம் சுவாமி தேசிகனையும் மனதிலே தியானித்து சேவிக்கலாம். ஓம் நமோ வெங்கடேசாய, கோவிந்தா கோவிந்தா என்று அந்த பரந்தாமனை பரமாத்மாவை சேவித்துக் கொண்டிருக்கிறோம். இதோ கல்யாண உற்சவத்திலே, ரக்ஷாபந்தன கைங்கரியத்திலே தராரமண கோவிந்தா கோவிந்தா. திருமலை அப்பனுடைய வக்ஷஸ்தலத்திலே நித்தியவாசம் செய்து கொண்டிருக்கும் அந்த நாச்சிமார்களான ஸ்ரீதேவி பூதேவி பிராட்டிமார்களுக்கு ரக்ஷாபந்தன கைங்கரியம் நடைபெற்றது. அதைத் தொடர்ந்து நாம் சேவிக்க இருப்பது அடுத்து அக்னி பிரதிஷ்டை ஹோமம். அதற்கு முன்பு அந்த எம்பெருமானுடைய திருவடிகளை சரணாகதி செய்து ஆத்ம ரக்ஷைக்கான அந்த ரக்ஷையை தன்னுடைய கரத்திலே அணிந்து கொண்டு மேற்கொண்டு கைங்கரியங்கள் செய்ய உள்ளார் அர்ச்சக சுவாமி. பகவானே வேங்கடவனே ஆபத் பாந்தவா அநாதரக்ஷகா கோவிந்தா கோவிந்தா என்றும், திருமலை வாசா வேங்கடவனே கோவிந்தா என்று சேவித்துக்கொண்டு அந்த திருநாமத்தை தொடர்ந்து கூறலாம். பகவானுடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலே அடுத்ததாக அக்னி பிரதிஷ்டை ஹோமத்தை சேவிப்போம். யக்ஞரக்ஷக கோவிந்தா கோவிந்தா என்று சேவிக்கலாம். அக்னி ஆவாகனம் செய்கிறார் அர்ச்சக சுவாமி. வைவாய்கோத்சர்மாங்கம் ஆகார ஹோம கர்ம ரிஷி. ஓம் யதோன்விந்திரம் சவாஹம் சுத்தம் சுத்தேன் சாம்னாஹ शुद्धैर्क्तैर्वाह रुद्धांशं शुद्धाशीर्वाहान् मोक्तु मयि देवात्रे नमाजन्तां देव्या होतारं सन्तु पूर्वैरिष्टास्यां तन्वासुवीराः मह्ये जन्तव्यान् हव्याकूतः सत्यामन सौम्यास्तु येन मानिगाहं गतमर्चनाहं विश्वे देवासोऽधिवोचतामि उद्धन्यमानमस्यामेध्यं पाप्मानं भजमानस्यन्तु शिवानस्सन्तु प्रजश्चन्ना माता पृथ्वीतोकसादा जातवेद भवनश्रेते हिंसतपसर्ज निषदेः अग्निमश्रद्धा देव्यवागं समीगर्भार्जने व्योमे अभूत् गतः प्रतीको गतयानरग्ने गतैः समिद्धगतमस्यान्नं गतं पुषस्वा पशुभन्तगतं पिबन् श्रियायक्षदेवान् आयुर्दाहाग्ने अभिशोषानो गतः प्रतीको गतयानरेधि गतं पीत्तामजार्गव्यं पिते उत्तरमिरक्षदादिमम् आयुः प्रयागमृमस्माः देशस्रोति तेनो द्रोणे अग्नाया हिते गृहाणो वेदाति निहतास ऋषि ऐतेन मुनिस्वान्मतेन मुनिस्वा सरस्तेन मुनिस्वा दिवेदपसुवा ब्रह्मज्ञानं पदं प्रसादशिमस्रचा वेनावः स बुद्ध्यात्मा सविष्टा सश्चनमतश्च वः ब्रह्माण्डमावाहयामि प्रजातमावाहयामि पितामहमावाहयामि हिरण्यगर्भावाहयामि ब्रह्मस्येदमासनं सोमो धेनुं सोमर्वन्तमा सोमो वीरं करुणं ददातु साधन्यं तिकं सभें पितृश्रणं ददातस्मै सोमवाहयामि ज्ञाङ्गमावाहयामि इन्दुमावाहयामि चंद्रमावाहयामि सोमस्येदमासनं ब्रह्मन् प्रोक्षिष्यामि प्रोक्षयज्ञं देवतावृत्यत्तन्नागसुविशेषमानोऽस्तु सप्तर्षीनागं सुदां मित्रस्तत्रेमं यज्ञं यजमानसदेः ओं प्रोक्ष सोम प्रोक्षिष्यामि प्रोक्षयज्ञं देवतावृत्यत्तन्नागसुविशेषमानोऽस्तु सप्तर्षीनागं सुदां मित्रस्तत्रेमं यज्ञं यजमानसदेः ओं प्रोक्ष पवित्रेः स्थ वैष्णव्यस्थ अग्नेः स्थ वायुभूतेस्थ विष्णोर्मनसा भूतेस्थ अग्निस्थ पावनेस्थः परशर पवित्रेः स्थ वैष्णव्यो देवसवितप्रसापनात्वच्छिद्रेण पवित्रेण वसोत्सूर्यसरस्वेनापो देवीरग्रे पुवोग्रे भोग्रिं यज्ञं नेताग्रे यज्ञपतिं दत्तयुष्माणीन्द्रोणित्तूर्ये यूयमिन्द्रं निध्वं तूर्ये प्रोक्षितास्था विष्णवे नमः विष्णोस्तु भोसि दक्षता विष्णोस्तु भोसि दत्तान् देवेभ्यः विष्णोस्तु भोसि श्रुतासि घृतासि ध्रुवासि तारणासि वानस्पत्यो देवेभ्यः सन्दस्व ब्रह्मण्णपः प्रणेष्यामि यजमानमातमिच्छा प्रणयज्ञं देवतावृध्यत्तन्नागसविष्ठेजमानोऽस्तु सप्तर्षीणागं सुता मित्रस्तत्रिमं यज्ञं यजमानसदेः ओं प्रणय सोमापः प्रणेष्यामि यजमानमातमिच्छा प्रणयज्ञं देवतावृध्यत्तन्नागसविष्ठेजमानोऽस्तु सप्तर्षीणागं सुता मित्रस्तत्रिमं यज्ञं यजमानसदेः
ओम प्रणयादक्षप्रद ब्राह्मेण तीर्थेना प्रजातमावाहयामि ब्रह्माणमावाहयम् इन्द्रमावाहयम् अग्निमावाहयम् सोममावाहयम् अग्निमावाहयम् सोममावाहयम् अग्नि सोममावाहयामि प्रजातमावाहयम् ब्रह्माणमावाहयम् इन्द्रमावाहयम् अग्निमावाहयम् सोममावाहयम् वसोनावाहयम् मरुतमावाहयामि रुद्रानावाहयामि अभाव स्पृश्य ओम श्री महाविष्णुमावाहयम् बृहस्पतिमावाहयम् मित्रमावाहयम् वरुणमावाहयम् आदित्यानावाहयामि अश्विनामावाहयम् पुषणमावाहयम् कक्षमावाहयम् कक्षसोममावाहयामि औपासने यज्ञमावाहयामि यज्ञेश्वरान् देवानावाहयामि सर्वदेवानावाहयामि आज्यभागे प्रजापतिष्ठन्नपामि इन्द्रायष्ठन्नपामि अग्नेष्ठन्नपामि सोमायष्ठन्नपामि यज्ञेष्ठन्नपामि सोमायष्ठन्नपामि अग्निसोमाहाभ्याण्ठन्नपामि प्रजापतिष्ठन्नपामि ब्रह्मणेष्ठन्नपामि इन्द्रायष्ठन्नपामि वसुभ्याष्ठन्नपामि मरुद्भ्याष्ठन्नपामि रुद्रेभ्याष्ठन्नपामि अपोपस्पृश्य ओम श्री महाविष्णुवेष्ठन्नपामि मित्रायष्ठन्नपामि वरुणायष्ठन्नपामि आदित्याभ्याष्ठन्नपामि सिद्धाण्ठन्नपामि पुष्णेष्ठन्नपामि कक्षायष्ठन्नपामि कक्षदेव सोमायष्ठन्नपामि उपासनयज्ञायष्ठन्नपामि यज्ञदृश्येभ्यो देवेभ्याष्ठन्नपामि आद्यन्त्रप्रतिश्रयामि चरन्त्रप्रतिश्रयामि अग्ने ज्योतिषि समितस्य स्वाहा अमृतं स्वारणमसि अन्तर्दं रक्ष अन्तर्धारातयः प्रतिष्ठा प्रतिष्ठारातयः चिक्विस्वाम्ना तुच्छद्रेण पवित्रेण सोत्सूर्यसरस्वती स्वाहा वाक्पतिस्वाम्ना तुच्छद्रेण पवित्रेण सोत्सूर्यसरस्वती स्वाहा देवस्ता स्वदाम्ना तुच्छद्रेण पवित्रेण सोत्सूर्यसरस्वती स्वाहा मूलाग्राभ्यं स्पर्शयित्वा अध्यक्ष अक्षता आज्ञान्तर्भिः अक्षता च जर्भिरिमामे ज्येष्ठगाधेनः सन्तु एका च शतं च सहस्रं च आयुधं च नीतं च प्रेतं च अद्भुतं च निर्भजं च समुद्राष्टं चिन्तां च स्थापराधस्य वरुणाय नमः वायवे नमः कुबेराय नमः ईशानाय नमः ब्रह्मणे नमः सोमाय नमः अग्ने नमः जातवेसे नमः सोसे नमः अवरप्रसे नमः पंक्तिरासे नमः सर्पणे नमः वैश्वानराय नमः अग्निपुरुषाय नमः एतेन मुनिस्वा नुतेन मुनिस्वा सरस्वतेन मुनिस्वा देवदप्पसुवा षष्टिसहस्राणि तमक्षमद्भुतमानया अयन्त्यत्मात्मा जातवेदस्य नेतस्सवधेजयद्वधेजास्मान् प्रजापशु ब्रह्मस्य नान्नाद्यन् समेध्या अस्मिन् औपासनानुन्दे ब्रह्मन् आधास्य आधस्वा समेधे स्वाहा वायुव्यादाग्नेयान्तं प्रजापतिः स्वाहा निरित्यादेशानान्तम् इन्द्राय स्वाहा अग्नेय स्वाहा सोमाय स्वाहा अग्निसोमाभ्याः स्वाहा प्रजापतिः स्वाहा ब्रह्मणे स्वाहा इंद्राय स्वाहा वसुभ्य स्वाहा मरुद्भ्य स्वाहा रुद्रेभ्य स्वाहा अपोपस्पृश्य ओम श्री महाविष्णवे स्वाहा बृहस्पते स्वाहा मित्राय स्वाहा वरुणाय स्वाहा आदित्येभ्य स्वाहा अश्वभ्याग स्वाहा पूष्णे स्वाहा कक्षाय स्वाहा कक्षदेव सोमाय स्वाहा उपासने यज्ञाय स्वाहा यज्ञदृश्येभ्यो देवेभ्य स्वाहा सर्वदेवेभ्य स्वाहा ओम भू स्वाहा ओम भो स्वाहा ओम सो स्वाहा ओम भूर्भो स्व स्वाहा तेन मगस्थाः नुतेन मगस्थाः सरस्तेन मगस्थाः दिवसप्रासावीः ओम भूः अतिपुरोक्तमिष्टायां स्यां श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सर्माङ्गम् आघार होमान्ते सर्वन्तर्वीर्यातृणात् प्रायस्तार्थम् अथो देवादिवैष्णव मोक्षे ऐतेन मुनिस्वा नुतेन मुनिस्वा सरस्तेन मुनिस्वा देवसेतपस्वा ओम मतो देवाहं तनुतो विष्णुचक्रमे पृथिव्या सुधां स्वाहा इदं विष्णुचक्रमे त्रेधानि देवदं समूढमस्वां सुरे स्वाहा त्रीणिपदाब्जक्रमे विष्णुगोपादाभ्यः ततो धर्मान् धारयन् स्वाहा विष्णोः कर्मान् विश्लेषः वृतानि विश्वसि इन्द्रस्य च सखा स्वाहा तद्विष्णोः परमं पदं सदा प्रसन्सूर्यः दिवि वचक्षुरादग् स्वाहा तद्यप्रासो वन्यमोजार्ध्रभागं तत्सविन्दते विष्णोर्जत्रमं पदग् स्वाहा ओम भू स्वाहा ओम भो स्वाहा ओम सो स्वाहा ओम भूर्भो स्व स्वाहा ऐतेन मगस्थाः नमतेन मगस्थाः सरस्तेन मगस्थाः देवसवितः प्रासावीः अन्योन्यमु चूडरे ओ करी अन्योन्यमु चूडरे सकलमु नेरिगिन सरसुले वीरु ओ करी अन्योन्यमु चूडरे सकलमु नेरिगिन सरसुले वीरु ओ करी अन्योन्यमु चूडरे
కన్నుల కడుజూచే చలి చంద్రముఖము సిరుల నాయకుడు కలువల కన్నుల కడుజూచే చెలువ సూర్య తేజపు పతిని మరలా చెలువ సూర్య తేజపు పతిని మరలా జలజాక్షంబుల సతియును జూచే జలజాక్షంబుల సతియును జూచే ఒకరికొకరి అన్యోన్యము చూడరే సకలము నెరిగిన సరసులే వీరు ఒకరికొకరి అన్యోన్యము చూడరే. తారని బింబాధరితో రమణుడు కోరి చిలుక పలుకుల పలికే తారని బింబాధరితో రమణుడు కోరి చిలుక పలుకుల పలికే తోరపు మేఘపు తురుము విభునితో తోరపు మేఘపు తురుము విభునితో ఆరయ మయూరయానయు బలికే ఆరయ మయూరయానయు బలికే ఒకరికొకరి అన్యోన్యము చూడరే సకలము నెరిగిన సరసులే వీరు ఒకరికొకరి అన్యోన్యము. తస్మై సమస్త వేదార్థ విజయ విఘ్నసే నమః. ప్రతిస్మృతినిధి పూర్ణం శాస్త్రగల్లాల సంకలం విష్ణుభక్తిరకం శుద్ధం వందే శ్రీవనార్ణవం. అథ భగవతో మహాపురుషస్య శ్రీమదాదినారాయణస్య అచింత్యా పరిశక్త్యా భ్రియమాణస్య మహాజలౌఘస్య మధ్యే పరిభ్రమణానాం అనేక కోటి బ్రహ్మాండానాం జగతమే పృథివ్యప్తేజో వాయువాకాశాహంకారమద వ్యక్తాఖ్య సప్తావర్ణీరావృతే అస్మిన్ మహతి బ్రహ్మాండే ఆధారశక్తి శ్రీవరాహ గౌర్మానందాష్టదిగ్గజోపరి ప్రతిష్ఠితానాం అతల వితల సుతల నితల ప్రతల మహాతల సాతల తలాతల సప్తపాతాళాఖ్య సప్తలోకానాం ఊర్ధ్వభాగే భూలోక భోర్లోక సువర్లోక మహర్లోక జనోలోక తపోలోక సప్తలోకాఖ్య షల్లోకానాం అధోభాగే మహానారాయమాణస్య ఫణిరాజస్య శేషస్య సహస్రఫణామణిమండలమండితే ఐరావత పుండరీక వామన కుమదాంజన పుష్పదంత సార్వభౌమ సుప్రదీకాఖ్యాష్టదిగ్దండ సండాదండోత్తంపితి అమరావతి తేజావతి సంయమనీ రక్షావతి సింధవతి గంధవత్తిలకావతి యశోవతి ఇత్యష్టదేవపురీ విరాజితే ఇంద్రాగ్ని యవనిరుతే వరుణవాయు కుబేరీశానాఖ్య అష్టలోక బాలక పరిపాలితే లోకాలోక జలవలయితే లవణేక్షుసురా చర్పితి క్షీరశుద్ధారగాఖ్య సప్తార్ణవపరవృతే జంబూప్లక్షక్రం చ స్వాగతాన్మణి పుష్కరాకాఖ్య సప్తద్వీపద్వీపతే మాహేంద్రమలయ సహ్యదృక్తమద్రక్తమద్వింద్యపర్యాత్రాఖ్య సప్తకులపర్వత విరాజితే భారత కిం పురుష హరిరావతభద్రాశ్వకేతుకమానగరమణక కుర్వర్షాఖ్య నవర్షాణాం మధ్యే భరతవర్షే మహాసరోవరాగార 50 కోటి యోజన విస్తీర్ణ భూమండలే 1,00,000 యోజన విస్తీర్ణ జంబూద్వీపే దండగారణ్యే ప్రజాపతి క్షేత్రే కర్మభూమౌ అవంతి కురుక్షేత్రాది సమభూమధ్యరేఖాయాః పూర్వదిగ్భాగే శ్రీ ఆదివరాహ క్షేత్రే మమ అనేక జన్మసు హ్య జన్మని చ ఏతక్షణపర్యంతం బాల్యయౌవన గోమారవార్ధికేషు రహస్య ప్రకాశే చ ఆవృత అనావృత మహాపాతకాది సమస్త దుర్దక్షయార్థం దశపూర్వేషాం దశాపరేషాం మత్వంశానాం మాతృవంశానాం సర్వేషాం పితॄణాం కుంభీపాక లోహితరామా సంఘాతపక అలసూత్రాది విదేభ్యో మహాఘోరేభ్యో నరకేభ్యః ఉత్తీర్య తిలైశ్వర్యమండపర్యంతం కృతరాశేర్వర్సహస్రావసానే ఏకైకతిలాపఘ్రక్రమేణ సర్వరాశ్రపఘ్రసమితికాలే శ్రీహరిలోకే నివాసిద్ధ్యర్థం
त्रिनिगुत अग्नेष्टामद्राप्ताप्तर्याम शान्तवनो अजमेयवौण्डरीकाश्रमेधाधि शतकृत पुण्यफलावाप्त्यर्थम् आमोद प्रमोद सम्मोद वैकुण्ठाख्यलोकेषु सालोक्य सारूप्य सामीप्य सायुज्य चतुर्विध मोक्षफलसिद्ध्यर्थम् परव्यूह अन्तर्यामि अर्चावतार स्वरूपरुणैः भृग्वादिभिर्मन्वादिभिर्दिव्य विशिष्टायुक्तगृह कन्यादानकल्पवोक्त कन्यादान महादानं करिष्ये। अस्य श्रीमदादि नारायणस्य अनेककोटि ब्रह्माण्ड नायकस्य अनंत कल्याण गुणगण गांभीर्यस्य दिव्यमंगल विग्रहस्य शंखचक्र गदा पद्मांकित कोटि सूर्य प्रकाशकस्य श्रीमतो वैकुंठ नायकस्य श्रीमद्वैखानस आगमोक्त प्रकारेण आंगीरथ भारस्पत्य भारद्वाज त्रयाऋषेय प्रवरान्वित भारद्वाज गोत्रोद्भवस्य परव्यूह अंतर्यामि अर्चावतार रूपस्य श्री महाविष्णोः परब्रह्मणो नप्त्रे आंगीरथ भारस्पत्य भारद्वाज त्रयाऋषेय प्रवरान्वित भारद्वाज गोत्रोद्भवस्य जगत्कारणभूतस्य मूलप्रकृति स्वकीयमानस्य त्रिगुणात्मकस्य गुणत्रय कर्मणो ख्यातिवशात् उत्पत्ति स्थितिरे कारणभूतस्य श्री महाविष्णोः परवासुदेव शर्मणः पौत्राय आंगीरथ भारस्पत्य भारद्वाज त्रयाऋषेय प्रवरान्वित भारद्वाज गोत्रोद्भवस्य समस्त देवतागण निकुट मकुट मणिगण विजृंभित पादारविन्दस्य श्री महाविष्णोः आदिनारायण शर्मणः पुत्राय आंगीरथ भारस्पत्य भारद्वाज त्रयाऋषेय प्रवरान्वित भारद्वाज गोत्रोद्भवाय भक्तलोक परिपालनाय किरीटहार केयूर दिव्याभरण भूषिताय कौस्तुभालंकृताय दिव्यपीतांबरधराय निजावताराय स्वर्णगरुडवाहनारूढाय अचिंत्य दिव्याद्भुत नित्ययौवन स्वाभावलावण्य तेजो रत्नाकराय अखिल शाखाध्यायिनो श्रवण नक्षत्रे मकर रासु जाताय श्री श्रीनिवास स्वामी परब्रह्मणे वराय ऋग्यजस्सामधर्वण सकल वेदाध्यायिनीं भार्गवच्चवनाप्नवानौर्वेदपञ्चार्षे प्रराणित भार्गवसगोत्रोद्भवीं सर्वालङ्कारवतीं सुराङ्गना संसेवित पादारविन्दां श्री महाविष्णोः वक्षस्थलनिवासिनीं अनन्तगुणात्मकां भृगवसङ्कल्पतनयां भार्गवीं उत्तरफल्गुनी नक्षत्रे कन्यारासु जातायां श्री श्रीदेवी नाम्नीं इमां कन्यां ऋणीद्वमे दास्यामि ऋग्यजस्सामधर्वण सकल वेदाध्यायिनीं काश्यपावत्सारणे धृत्रयार्षे प्रदानित काश्यपसगोत्रोद्भवीं सर्वालङ्कारवतीं सुराङ्गना संसेवित पादारविन्दां श्री महाविष्णोः अत्यन्त मनोहरीं कश्यप प्रजापतेः संकल्पतनयां काश्यपीं रेवती नक्षत्रे मेनदासु जातायां श्री भूदेवी नाम्नीं इमां कन्यां ऋणीद्वमे दास्यामि कन्यां कनकसम्पन्नां कनकाभरणेरतां दास्यां विष्णवे तुभ्यं ब्रह्मलोकं जिगीर्ष्य सालङ्कृतां मां साध्वीं सुशीलाय सुमेधसे प्रेतोऽहं प्रेक्षामि सर्वकाम्यार्थसिद्धये विश्वम्भरा स्वरूपा साद्गुण्य सर्वदेवता इमां कन्यां प्रदास्यामि प्रीणातु कमलावतीः कन्यादानसमुहूर्तोऽस्ति भवन्तो महान्तो न गृह्णन्तु सुमुहूर्तोऽस्तु। ఓం నమో వెంకటేశాయ, ఓం నమో నారాయణాయ. கோவிந்தா கோவிந்தா. திருமலையப்பனுடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலே மகா சங்கல்பம் கன்னியாதானம் கைங்கரியங்களை இப்பொழுது நாம் சேவித்துவிட்டு அதைத் தொடர்ந்து மாங்கல்ய பூஜையை சேவிக்க உள்ளோம். பக்தர்களே, அந்த அனபாயினிகள் என்று கூறப்படும் பிராட்டிமார்கள் எம்பெருமானுடைய வக்ஷஸ்தலத்திலே நிரந்தரமாக குடிகொண்டிருப்பவர்கள். அப்படிப்பட்டவர்களுடைய அந்த மாங்கல்யங்களை இப்பொழுது அர்ச்சக சுவாமி சுத்தப்படுத்தி மஞ்சள் குங்குமமிட்டு அக்ஷதை முதலவைகளால் பூஜை செய்ய உள்ளார். செவிக்கலாம் அந்த மாங்கல்யங்களையும் மாங்கல்ய பூஜையையும். பகவானுக்கு திருமஞ்சனம் செய்தால்
அந்த திருமஞ்சன நீர் வீணாகுமா? கிடையவே கிடையாது. ஏனென்றால் பக்தர்களுக்கு அந்த திருமஞ்சன நீரை பிரசாதமாக தீர்த்தமாக வழங்குகிறார்கள். வாதூல தேசிகர் வைத்திய ரத்னம் என்னும் பட்டத்தை பெற்றிருந்த வைஷ்ணவரை அழைத்து மருந்தை எடுத்து வரச் சொன்னாராம். அவரும் எடுத்து வந்து கொடுத்தார். சின்ன மண் கலயம் ஒன்று மேலே மெல்லிய பருத்தி வஸ்திரத்தால் மூடப்பட்டு அந்த கலயத்திலே கழுத்தில் கட்டு போடப்பட்டிருந்ததாம். இந்த தன்வந்திரி அபிஷேக தீர்த்தத்துடன் வெற்றிலை சாறு, மிளகுப்பொடி, கற்பூரவல்லி சாறு, அத்துடன் துளசி சாறும் துளி மஞ்சளும் சேர்க்கப்பட்டுள்ளது. இது போக இந்த குளிகை உருண்டைகளையும் தருகிறேன் என்றாராம். அவை மிகுந்த கவனமுடன் சீந்தல் கொடிச்சாறு, அஷ்டமூலி எனப்படும் திப்பிலி, சுக்கு, காசி, தும்பை, வசம்பு, விரலி மஞ்சள், அஸ்வகந்தா, அதிமதுரம் ஆகிய கருடன் ஆகியவைகளை ஆகாச கருடன் ஆகியவைகளை கொண்டு செய்யப்பட்டவை என்றும் அவற்றை எடுத்துக்கொண்டால் நம்முடைய மார்பிலே இருக்கும் அந்த சளி கரையும் என்றும் நல்ல தூக்கம் உண்டாகும் என்றும் இதை வைத்திய முறையில் நான் செய்து வந்து கொடுத்திருக்கிறேன் என்றாராம். இப்படி அனைத்து மூலிகைகளையும் தன் கலசங்களுக்குள் அடக்கி எடுத்து வந்தேன். அவை வைத்திய முறைதான் ஆலய வைத்தியசாலைகளுக்கும் பின்பற்றப்பட்டுள்ளது என்றார். ஆலயத்தில், அதாவது கோவிலில் வழங்கப்படும் பெருமாள் தீர்த்தமும் என்பதும் துளசி, பச்சை கற்பூரம், ஏலம், மதுரம் சேர்த்து செய்யப்படுவதே. பக்தர்கள் கோவில் வருகையில் பெருமாளின் அருளோடு இந்த தீர்த்தத்தை மருந்தையும் தினமும் பெற்று செல்லுகிறார்கள். அதனாலேயே கோவிலை சார்ந்தவர்களுக்கு அல்பப்பிணிகள் உண்டாவதில்லை என்றும் கூறப்படுகிறது. கர்ம பிணிகளை தடுக்கும் ஆற்றல் எவனுக்கும் இல்லை. அவற்றை ஒருவன் அனுபவித்தே தீர்த்தே கடந்திட வேண்டும் என்றும், கடும் பிணிக்கு ஆட்பட்டால் அனைத்தும் தாங்கும் திறனை அரங்கன் தருவான். இவையெல்லாம் பின்பற்றப்படும் நம்முடைய பழைய வழிமுறைகள். இவற்றை நவா பீடம் கூறி நட்போடு இருக்கச் சொல்லுங்கள். நட்பு இல்லாவிட்டாலும் பகை இல்லாமல் இருந்தால் அதுவே போதும் என்றார். இப்படி நிறைவாக வாதூல தேசிகர் கூறியதை கேட்ட நிலையில் மருந்துடன் புறப்பட்டார் சின்னைய முதலி. அதன்பின் ஆற்காடு நவாபை சந்தித்து, நவாபின் அருகில் காவல் பணிபுரிபவர்களுக்கும் காய்ச்சல் ஜுரம் வந்துவிட்டது, இதை கொடுக்கலாமா என்றார். இப்படி அந்த நவாபை நெருங்கி அருகிலேயே அமர்ந்து திருவரங்கத்து அருள் மருந்தை நவாப் சாப்பிடும்படி செய்தாராம். மறுநாளே அந்த நவாபின் பெரும் மாற்றம். இருமல், சளி எல்லாம் அடங்கி எழுந்து அமர்ந்தாராம். பேசவும் தொடங்கி விட்டாராம். அப்பொழுது அந்த மருந்து கொடுத்தவர் வரவும் உற்சாகமாக எழுந்து வரவேற்றாராம். உங்களுக்கு என் நன்றிகள் பல. நீங்கள் அளித்த மருந்தின் வேகம் என்னை வெகு விரைவில் வேகமாக குணப்படுத்தி விட்டது என்றும் இங்கு என் வைத்தியர்களே ஆச்சரியப்பட்டார்கள். திருவரங்கம் பொக்கிஷங்களுக்கு பெயர் பெற்றது என்றே எண்ணி இருந்தேன். மருத்துவத்துக்கும் பெயர் பெற்றது என்பது இப்பொழுதுதான் உணர்ந்தேன் என்றாராம். ஆம், சுல்தான் அங்கே இப்பொழுது கொட்டாபுரத்திலே செல்லும் நெல்லும் இல்லை. மைசூர் திப்பு சுல்தான் கூட அங்குள்ள வைஷ்ணவர்களின் ஒற்றுமை மற்றும் பக்தியை கண்டு ஆச்சரியப்பட்டார்கள். அப்படியானால் இந்த முறை வரிவிலக்கு அளித்து மன்னிக்க வேண்டும் என்றாராம். இவ்வாறாக அந்த அரங்கத் தலைவர்கள் அன்பையும் பண்பையும் எண்ணியவர்கள், உங்களுக்காக மருந்தை நான் கேட்கவில்லை, தானாக முன்வந்து அளித்தார். அப்படியென்று அந்த ஸ்ரீரங்க பெருமானை செவித்து கொண்டாராம். கோவில் சொத்து எங்கிருந்தும் வேண்டாம் சுல்தான் என்றாராம். இவ்வாறாக அந்த எம்பெருமானுடைய சொத்துக்களை நாம் பயங்கரமாக, அதாவது அனாவசியமாக அபகரித்து கொண்டால் பகவான் நமக்கு தண்டனை கொடுப்பார். ஆனால் நியாயமான வழியிலே அதை நாம் அனுபவிக்க வேண்டும். இப்படி அந்த பூலோக ஸ்வர்க்கம் என்று கூறும் ஸ்ரீரங்கத்திலே எம்பெருமான் ரங்கநாதராகவும், கலியுக சொர்க்கம், கலியுக கண்கண்ட தெய்வம் என்று கூறப்படும் எம்பெருமான் திருவேங்கடமுடையானுடைய அந்த பகவானையும் செவித்து கொண்டு, இதோ கல்யாண உற்சவத்திலே மாங்கல்யங்களுக்கு பூஜை நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறது. மாங்கல்ய பூஜையை சேவிக்கலாம். அதேபோல் திரேதா யுகத்திலே ராமபிரான் புனர்பூச நட்சத்திரத்திலே
புனிதனான ராமபிரானாக அவதரித்தான். அந்த பகவானை நாம் சேவித்து கொள்ளலாம். வசந்த அதாவது சித்திரை மாதம் புனர்பூச நட்சத்திரம் வளர்ப்பிறை நவமி நன்னாள் என்றாலே ஸ்ரீராம நவமி உற்சவம்தான் நமக்கு நினைவுக்கு வரும். ராமனின் அவதார நன்னாள் அன்று. அந்த தினத்தில் வசந்த நவராத்திரி நிறைவு பெற்று ராம நவமி தொடங்குகிறது. ராம நவமி உற்சவத்தை 2 விதமாக கொண்டாடுவார்கள். பகவான் அவதரித்த நாளிலிருந்து அவர் வளர்ந்து அந்த தசரத மகாராஜன் எத்தனையோ கடமைகளை செய்து அவருடைய ஆசிகளை பெற்றார். இதோ மாங்கல்ய பூஜை முடிந்து மாங்கல்ய தாரணம் நடைபெற உள்ளது. செவிக்கலாம் மாங்கல்ய தாரணத்தை. லக்ஷ்மீ ரமண கோவிந்தா, தரா ரமண கோவிந்தா. சௌபாக்யமத்வை தத்தாயாதாஸ்தம் விபரேதனாம் ஸ்ரீயே ஜாதஸ்ரீயானிர்யாய ஸ்ரீயம்பயோ திருதிருப்யோ தாதி ஸ்ரீயம்பசானாமிருதத்தமாயன் பவந்தி சத்யா சமிதாம் தத்ரௌ ஸ்ரீதேவ்யை நமः மாங்கல்யதாரணசமுர்த்தோஸ்தி பவந்தோ மகாந்தோ ந முகூர்த்தோஸ்து. प्रजापतिस्तामुखं राजानमसृजत तन्त्रयो वेद अन्वसृज्यन्त तान् हस्ते कुरुत अथ सीता सावित्री सुमङ्गलीर्यं मधुरिमागं समेधपश्यत सौभाग्यमत्वै दत्त्वायादास्तं विपरेतनां मेधिनी देवी वसुन्धरा स्यादुता देवी वासवी ब्रह्मवर्चसः पितॄणां स्तोत्रं चक्षुर्मणः भूदेव्यै नमः माङ्गल्यधारणसमुहूर्तोऽस्ति भवन्तो महान्तो न गृह्णन्तु सुमुहूर्तोऽस्तु सुप्रतिष्ठितमस्तु. शोभन में शोभन में शोभन में शोभन में वैभवमुल पावन मूर्ति की शोभन में शोभन में वैभवमुल पावन मूर्ति की शोभन में शोभन में शोभन में అరుదుగమును నరకాసురుడు సిరులతో చెరలు తెచ్చిన సతులా అరుదుగమును నరకాసురుడు సిరులతో చెరలు తెచ్చిన సతులా పరువపు వయసుల 16 వేలను సోరిది పెట్లాడిన సుముఖునికి పరువపు వయసుల 16 వేలను సోరిది పెట్లాడిన
इमं मे वर्णस्य देहमुद्वाचमुड्या त्वां वस्त्राचके स्वाहा तत्त्वायां ब्रह्मणा वन्दमानस्दाशाः स्तेजमानो गर्भिः अहेडमानो वर्णे हवोदृशं समान आयुः प्रमोषि स्वाहा तन्नोऽग्ने वरुणस्य विद्वान् देवस्य डवयाश्रेष्ठाः यज्ष्ठा वण्डितमस्वहिडानो विश्वाद्वेषागं सुप्रमुत्य स्वाहा तत्तन्नोऽग्ने मो भवति नेदिस्वास्याप्सोऽब्जष्टौ अवयक्षणवर्णमृणानो विहिमृडिं सुहो नेधि स्वाहा त्वमग्ने हयास्ते आसन्मनसा यतः हयासन् हव्यमूषे यानो देहि वे जग्गु स्वाहा ओं भू स्वाहा ओं भू स्वाहा ओं सु स्वाहा ओं भूर्भुवः स्व स्वाहा ऐतेन मुखस्थाः हनुमतेन मुखस्थाः सरस्तेन मुखस्थाः देवसहितः प्रासावीः ओं भूहोतिपुरोक्तिष्ठायामस्यां श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सकर्माङ्गं लाजहोमं होष्ये ऐतेन मुनिस्वा हनुमतेन मुनिस्वा सरस्वतेन मुनिस्वा दिव्यप्रसवा इमां लाजान्ति आज्यमभिगाज्याम् इमां लाजानापामि समृद्धिकरणान् मम तुभ्यन्त संवरणां सदग्निरणमन्यतां यन्नार्यबब्रूदे अग्नो लाजानापन्ति दीर्घायुरस्तरेपतिरेधन्तां ज्ञातयोमस्वाहा उदायुसा स्वायुषो दोहदेनागमसेनोत्तर्जन्यस्य शुष्मेणो दस्तामृतागम् अनु विश्वावदत्त्वया व्यन्धारावधन्या इव अतिगाहे महेद्विषः इमां लाजानापामि समृद्धिकरणान् मम तुभ्यन्त संवरणां तदग्निरणमन्यतां यन्नार्यबब्रूते अग्नो लाजानापन्ति दीर्घायुरस्तरेपतिरेधन्तां ज्ञातयोमस्वाहा उदायुसा स्वायुषो दोहदेनागमसेनोत्तर्जन्यस्य शुष्मेणो दस्तामृतागम् अनु विश्वावदत्त्वया वयं धारावधन्या इव अतिगाहे महेद्विषः इमां लाजानापामि समृद्धिकरणान् मम तुभ्यन्त संवरणां सदग्निरणमन्यतां यन्नार्यबब्रूते अग्नो लाजानापन्ति दीर्घायुरस्तरेवतिरेधन्तां ज्ञातयोमस्वाहा उदायुसा स्वायुषो दोहदेनागमसेनोत्तर्जन्यस्य शुष्मेणो दस्तामृतागम् अनु विश्वावदत्त्वया वयं धारावधन्या इव अतिगाहे महेद्विषः ओं भू स्वाहा ओं भू स्वाहा ओं सु स्वाहा ओं भूर्भुवः स्वः स्वाहा इतेन मुखस्थाः हनुमतेन मुखस्थाः सरस्तेन मुखस्थाः देवसहितः प्रासावीः ओं भूहोतिपुरोक्तिष्ठायामस्यां श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सकर्माङ्गं लाजहोमान्ते सर्वमन्त्रपर्यातरणात् प्रायस्तात् समतो देवादिवैष्णवं होष्ये तेन मुनिस्वा हनुमतेन मुनिस्वा सरस्तेन मुनिस्वा देवतप्रसवा ओं मतो देवाहन्तरतो विष्णुचक्रमे दिव्या सप्तां स्वाहा इदं विष्णुचक्रमे त्रयदानि देवतं समूढमस्वां श्रेय स्वाहा त्रीणिपदाचक्रमे विष्णुगोपादाभ्यः ततो धर्माणि धारयन् स्वाहा विष्णोः कर्माणि विस्तेतोः वृतानि वस्यै इन्द्रस्य सखा स्वाहा तद्विष्णोः परमं पदं सदा प्रसन्सूर्यः दिवीवचक्षुरादग् स्वाहा तद्विप्रासो विञ्जवो जार्द्रभागं तत्सविन्दते विष्णोद्यत्परं पदग् स्वाहा ओं भू स्वाहा ओं भू स्वाहा ओं सु स्वाहा ओं भूर्भुवः स्वः स्वाहा ऐतेन मुखस्थाः हनुमतेन मुखस्थाः सरस्तेन मुखस्थाः द्विषितः प्रासावीः ओं भूतिपुरोक्तिष्ठायामस्यां श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सकर्माङ्गं कर्म साफलतं परिष्ठातन्त्रं करिष्ये तेन मुनिस्वा हनुमतेन मुनिस्वा सरस्वतेन मुनिस्वा देवतप्रसवा यतस्य करुणोत्तिरेतं विद्यानेन महाकर्मग्निस्वष्टार्थं करोतु स्वाहा अग्नेः सृष्टगते स्वताहतावतेनाङ्कामानगसमुद्रित्रे स्वाहा अग्नेः स्वाहा अग्नेन्नादाय स्वाहा अग्ने नमते स्वाहा प्रजापते स्वाहा इंद्राय स्वाहा विश्वेभ्यो देवेभ्यो स्वाहा सर्वाभ्यो देवताभ्यो स्वाहा सर्वत्रैवादिष्टं सर्वत्रैवानादिष्टं देवतमस्मै स्वाहा अग्नेः सृष्टगते स्वाहा वास्तुपदे नमः वास्तुपदे स्वाहा यन्मात्मनम् इन्दाभूदग्निस्तत्तनराः जातवेदावचस्मै स्वाहा पुनरग्निश्चक्षुरात्मनेन्द्र बृहस्पति पुनर्म्याश्वराज्वं जक्षात्मक्षो स्वाहा इष्टेभ्य स्वाहा वृष्टेभ्य स्वाहा भेजनदृष्टै स्वाहा निष्कृत्यै स्वाहा द्योराध्यै स्वाहा देवीभ्य स्वाहा तनूभ्य स्वाहा वृद्ध्यै स्वाहा समृद्ध्यै स्वाहा सर्वसमृद्ध्यै स्वाहा आस्त्रायुतमत्यास्त्रायुतं षट्कुणमतिनोः क्तञ्चेग्ने अतिरिक्तं कर्मणो यच्छेन मग्नः पर्वाणि प्रज्ञेत कल्पयन् स्वाहा कृतार्तिरेत देवान् स्वाहा यथोऽस्येषु धीमहि स्वाहा समिधस्य तेजोमयधे स्वाहा यमस्य धीमीं त्योर्मय स्वाहा सुरस्य धीमि चक्षुर्मय स्वाहा
सोमसुधि में चित्तम में बाहि स्वाहा वायोधि में प्राणान में बाहि स्वाहा ब्रह्मणोधि में बुद्धि में बाहि स्वाहा सप्तदे अग्नि सप्त सप्तपा सप्त सप्ताम प्रियाणि सप्तहोत्राः सप्तात्वा इंद्रि सप्तयो निरावण स्वायुतेन स्वाहा अग्निर्भुक्तं वेदिर्भुक्तं देवर्भुक्तं पतिर्भुक्तं वोषधे वनस्पति गंधर्वा श्रेष्ठ भुक्तं अग्निजीर्णं वेदिर्जीर्णं द्यौर्जीर्णं पृथिवीजीर्णं वोषधे वनस्पति गंधर्वा श्रेष्ठ जीर्णग् स्वाहा समन्तां भयविषाउतेन समादित्यै वसुभिः सम्मरुद्भिः समिन्द्रेण विश्वेभिर्देवेभिरन्तां दिव्यं नभो गच्छते स्वाहा सप्तते अग्नि समितः सप्तैक्वा सप्तश सप्ताम प्रियाणि सप्तहोत्राः सप्तात्वा इन्द्रि सप्तयो निरावृत्स्वाहुतेन स्वाहा अग्निस्त्रिपदो वेदस्त्रिपदो द्यौस्त्रिपदो पृथिवीस्त्रिपदो ब्रह्माद्यास्त्रिप्यन्तां वषधे वनस्पति गन्धर्वा सर्वत्रिप्यन्तां यदक्षपदा महाप्रदा महासाक्ष्यमस्तत्रिप्यन्ताम् अयतेन मगस्थाः अनुतेन मगस्थाः सरस्तेन मगस्थाः देवप्रासाभिः पवित्रं से पवित्रं में भूया स्वाहा पूर्णमसि पूर्णं में भूया स्वाहा सत्सन् में भूया स्वाहा क्षमा में चेष्टाः साक्षाः उत्तरतः परदेवनया दक्षिणतः विष्णोः सदनमसि पश्चिमतः विष्णोः सदनमसि प्राच्यां विष्णोः सदनमसि सर्वाण्यान् समूह्य ग्रन्थिं विसृज्य अध्ये प्रोक्ष आप्यायन्त्वामिति ज्योति आप्यायन्त्वामापवोषधयोमृतां प्रषदयश्च दिवं गच्छतो नवृष्टिमेरे स्वाहा शुद्ध्यन्तां देवसदनं शुद्ध्यन्तां देवसदनं भूतिस्माते लभते नित्यगं सर्वयज्ञकृतं भवेत् अग्निमारुत्योद्भूतिः आदित्यस्तमो नमः त्र्यायुषं जमदग्ने कश्यपस्य त्र्यायुषं तद्देवानाः त्र्यायुषं तन्मेऽस्तु त्र्यायुषं दीर्घायुत्वाय दीर्घायुत्वाय बलाय शताय शतं च वर्षे त्र्यायुषम् आपोहिष्टामयो भोस्तानो ऊर्जिदादन मेरणाय चक्षे योपस्वतमानसस्तस्य भार्यतेन पठतिरिव मात्रः तस्मारङ्गमापो चक्ष्याय जन्मथा आभोजनीयभाजनः यत्येज्ञेतेजस्वीनाहं तेजस्वी भूयासमुत्यग्नि वर्चस्वीनाहं वर्चस्वी भूयासमुत्यग्नि हरस्वीनाहं हरस्वी भूयासं मयि मेधां मयि प्रजां मे अग्निस्तेजो दातु मयि मेधां मयि प्रजां मे इन्द्रियं ददातु मयि मेधां मयि प्रजां मयि सूर्योद्भ्राजो दातु योक्षसूर्यं दृशे यवतगान्मातो नवाः दुभ्राजमानसरसमध्या समाभ्रभरो यदाक्ष सूर्योपसन्नतापनातु ओञ्चमे सहस्रमे ज्ञपते नमश्च यस्तेः न्यूनं तस्मै ते नमः बालकतम्बा च तम्बा सतहे नम्बा पुष्पे नम्बा पौत्रहे नम्बा तारभाग्ये जातवे सेवान् प्रद्धर्दवो नमः कायेन वाचा मनसेन्द्रियर्वा रुद्यात्मना वा पदे स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै श्रीमन्नारायणायेति समर्पयामि। ब्रह्मणे नमः सोमाय नमः धास्थानं धास्कं प्रवेशयामि अग्निवृषाय नमः आज्यो भारं निवेदयामि। सर्वं श्री भूनीला समेत श्रीनिवासार्पणमस्तु। ఓం నమో వెంకటేశాయ. ஏடுகொண்டலவாடா வெங்கடரமணா கோவிந்தா கோவிந்தா. பக்தர்களே,
லாஜஹோமம், பிரதான ஹோமம், அஞ்சனமிடுதலை சேவித்துக்கொண்டு பூர்ணாகுதியையும் சேவித்தோம். அடுத்ததாக வாரணமாயிரம் கைங்கரியங்களை சேவிக்க உள்ளோம். வாரணமாயிரம் என்பது ஆண்டாளுடைய பாசுரங்களை நாச்சியார் திருமொழியிலிருந்து 11 பாசுரங்களை எடுத்து வாரணமாயிரம் பாசுரங்களாக திருத்தி தன்னுடைய கனவின் விற்த்தாந்தங்களை தோழிகளுக்கு கூறும் படலமே இந்த வாரணமாயிரம். வாரணமாயிரம் சூழ வலம் செய்து நாரண நம்பி நடக்கின்றான் என்னெதிர் பூரண பொற்கொடம் வைத்து புறமெங்கும் தோரணம் நாட்ட கன கண்டேன் தோழியினான் என்று தன்னுடைய தோழிகளுக்கு அவள் கண்ட கனவினை கூறுகிறாள். அதைத் தொடர்ந்து மாலா பரிவர்த்தனம், மாலைகளை மாற்றுவது. இந்த மாலைகளை எதற்காகென்றால் அந்த ஸ்ரீவில்லிபுத்தூரிலே எழுந்தருளியிருக்கும் ஆண்டாள் மகாலட்சுமியின் அம்சமாக அவதரித்தவள். விஷ்ணு சித்தரின் பெண்ணாக, பெரியாழ்வாரின் பெண்ணாக துளசி வனத்திலே கண்டெடுக்கப்பட்டவளுக்கு கோதை என்று பெயரிட்டு வளர்த்து வந்தார் அந்த பெரியாழ்வார். அவரிடமே பாசுரங்களை இயற்றுவதும் புஷ்பங்களை மாலையாக தொடுப்பதும் கற்றுக்கொண்டு அந்த புஷ்பங்களை பறித்து கொண்டு வந்து தினந்தோறும் மாலைகளை தொடுப்பாள் ஆண்டாள். அப்படி தொடுத்து தன் கழுத்திலே அணிந்து கொண்டு அதன் பிறகு பகவானுக்கு சமர்ப்பிப்பாள். இப்பொழுது அதே போல்தான் வேங்கடவனுக்கு சமர்ப்பித்த மாலையானது ஸ்ரீதேவி பிராட்டிக்கு சமர்ப்பிக்கப்பட்டது. லக்ஷ்மி ரமண கோவிந்தா கோவிந்தா என்று அந்த ஸ்ரீதேவியினுடைய கழுத்திலே இருந்த மாலையானது பகவான் வேங்கடவனுக்கு சமர்ப்பிக்கப்படுகிறது. ஸ்ரீ வெங்கடேசா, ஸ்ரீ சீனிவாசா கோவிந்தா கோவிந்தா, பக்தவத்சலா கோவிந்தா, பாகவத பிரிய கோவிந்தா என்று அந்த பகவானுக்கு மாலையை சாத்திவிட்டு அவருடைய திருவடிகளை அடிபணிந்து திரும்பவும் அந்த பகவான் அனுப்பியது போலவே பூமி பிராட்டிக்கு கொண்டு சென்ற அந்த மாலையை அணிவிக்கிறார் அர்ச்சக சுவாமி. வசுந்தரா ரமண கோவிந்தா, தரா ரமண கோவிந்தா கோவிந்தா என்று பூமி பிராட்டி ஏற்கனவே அவள் அணிந்து கொடுத்த மாலைதான். இருப்பினும் சூடி கொடுத்த நாச்சியார் என்ற பெயருடன் திரும்பவும் அதே மாலையை பகவானுக்கு அனுப்புகிறாள். பகவானுக்கு அந்த மாலை சமர்ப்பிக்கப்படுகிறது. ஏடு கொண்டல்வாடா வெங்கடரமணா கோவிந்தா கோவிந்தா என்று பகவானுக்கு அந்த மாலையை சமர்ப்பித்தார். அதைத் தொடர்ந்து ஸ்ரீதேவி பிராட்டியையும் பூமி பிராட்டியையும் பகவானுடைய பக்கத்திலே ஆசீனப்படுத்துகிறார்கள். மூவரையும் ஒரே சிம்ஹாசனத்தில் ஆசீனப்படுத்தி அதன் பிறகு அக்ஷதாரோபணம் என்னும் தலம்பராலு கைங்கரியம், அதைத் தொடர்ந்து மங்கள நீராஜனத்துடன் திருக்கல்யாண மகோத்சவம் நிறைவு பெறுகிறது. இந்த கல்யாண உற்சவத்தில் நேரடி ஒளிபரப்பில் பங்கு கொண்ட பக்தர்களுக்கும் தொலைக்காட்சி மூலமாக சேவிக்கும் பக்தர்களுக்கும் உலகெங்கு இருக்கும் பக்தர்கள் அனைவருக்கும் கூட பகவானுடைய கருணா கட்டாட்சம் கிடைக்க வேண்டி சேவித்துக்கொண்டு அக்ஷதாரோபண கைங்கரியத்தையும் மங்கள நீராஜனத்தையும் சேவிக்கலாம். ஓம் நமோ வெங்கடேசாய. கோவிந்தா கோவிந்தா. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వీనే పెండ్లి కూతురు. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వీనే పెండ్లి కూతురు. సిగ్గుబడి పెండ్లి కూతురు, పేరంటాండ్ల నడిమి పెండ్లి కూతురు, విభు పేరు పుచ్చ సిగ్గుబడి పెండ్లి కూతురు. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు,
కొంత పెడమరలి నవ్వీనే పెండ్లి కూతురు. బిరుదు పెండెము పెట్టే పెండ్లి కూతురు, నెర బిరుదు మగని కంటే పెండ్లి కూతురు. బిరుదు పెండెము పెట్టే పెండ్లి కూతురు, నెర బిరుదు మగని కంటే పెండ్లి కూతురు. తిరిదూరినప్పుడే పెండ్లి కూతురు, పతి పెరరేచి నిదివో పెండ్లి కూతురు. తిరిదూరినప్పుడే పెండ్లి కూతురు, పతి పెరరేచి నిదివో పెండ్లి కూతురు. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వీనే పెండ్లి కూతురు. विना वेङ्कटेशं ननाथो ननाथः, सदा वेङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि. हरे वेङ्कटेश प्रसीद प्रसीद. प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ प्रयच्छ. గోవింద